I was discussing topic 4, that was what changed after October. What changed after October? I was discussing your topic 4th. In this, I have already discussed changes made in Russia after October. Then I have discussed civil war between Reds, Whites and Greens. After that, I discussed making a socialist society. I have discussed already these three subtopics. That different changes were made in Russia after October. The name of Bolsheviks was changed to Russian Communist Party. Banks and lands were industries were nationalized. That means it became national property. Lands were given to the peasants. That means peasants were given permission to seize the lands of landlords. After that, the civil war started between Reds, Whites and Greens, in which lastly Reds won the civil war, and by January 1920 the whole Russia came under the control of the Bolsheviks. After that, they formed a socialist society in Russia by starting centralized planning, 5-year plan. After that, the basic means of livelihood were provided to the workers. Cheap health facilities were provided to them. The schooling system was or education was extended. That means the workers, the peasants also got the right to take education. Creches were established for the women workers who have a small child. That means different steps were taken by the government to make a socialist society in Russia. After that, today we will read Stalinism and collectivization. Today we will read Stalinism and collectivization. In this, you already know that Vladimir Lenin was the head of Russia or Bolshevik party, or you can tell that Russian Communist Party. After Lenin, after death of Lenin, Stalin became the head of Russia or head of Russian Communist Party, or you can tell the head of Bolshevik Party. And during the rule of Stalin, by 1927-28, 1927-28 में, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. 1927-28 में क्या हुआ कि जो रशिया है वहाँ पे ग्रेन्स की कमी हो गई. जो वहाँ फार्मर्स थे, जो प्राइसेस फिक्स किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उस प्राइसेस पे अपने ग्रेन्स को बेचने के लिए तैयार नहीं थे. अब ऐसी स्थिति में जो ग्रेन्स था उसकी कमी हो गई रशिया में, और ग्रेन्स की कमी होने के कारण
स्टालिन को काफ़ी स्टेप्स उठाना पड़ा, काफ़ी फर्म स्टेप्स उठाना पड़ा। तो स्टालिन who headed the party after death of Lenin introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in hope of higher prices. तो जो स्टालिन है उनको लगने लगा कि जो बड़े बड़े किसान हैं और जो मर्चेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि होर्डिंग करते रहे हैं, जो स्टॉक्स है जो फूड ग्रेन्स का उसको स्टॉक करके रख दे रहे हैं ताकि प्राइसेस को बढ़ जाने के बाद फिर से हम उसको ज़्यादा प्राइसेस में बेच पाए। यहाँ पे दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, दो जो टर्म्स है, कूलर्स, कूलर्स का मतलब था वेल टू पीसेंट्स। जो धनी किसान है उनको वहाँ पे कूलर्स बोला जाता था। और जो दूसरा जो है टर्म है वो है कॉलखोज। जो कॉलखोज था इसको आप लोग बोल सकते हैं कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव फार्म्स, या फिर उसको कोऑपरेटिव्स भी आप लोग बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव्स आप इसको कलेक्टिव फार्म्स भी बोल सकते हैं और कोऑपरेटिव भी आप बोल सकते हैं। तो जो स्टालिन थे उनका मानना था कि जो धनी किसान हैं, जो कूलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि फूड ग्रेन्स को होर्डिंग कर दे रहे हैं ताकि बाद में अच्छा प्राइसेस हमको उसका मिल पाए। तो इसलिए क्या हुआ, इन 1928 party members, that means members of Bolshevik party, they went to the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding coal cars. वो लोग क्या किए कि 1928 में जो बॉल्शेविक्स पार्टी के मेंबर्स थे, वहाँ जहाँ ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता था, ग्रेन प्रोड्यूसिंग जो एरियाज था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पे जाने लगे और ज़बरदस्ती जो फूड ग्रेन्स है उसको छीनना शुरू कर दिए, कलेक्ट करना शुरू कर दिए। किससे? कुलकार से। जो कुलकार जो बड़े बड़े किसान थे उनके यहाँ रेड डालना शुरू कर दिए और रेड डाल के ज़बरदस्ती फूड ग्रेन्स का कलेक्शन शुरू कर दिए। उसके बाद भी शॉर्टेज जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उनको लगने लगा, स्टालिन को लगने लगा कि जो छोटे मोटे, जिस समय ये ऑर्डर किया गया था अक्टूबर के बाद कि जो भी लैंडलॉर्ड्स का ज़मीन है उसको जो पीजेंट्स हैं वो अपने पास में रखें, तो बहुत सारे छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स भी हैं। तो वो सोचा गया कि जो लैंड होल्डिंग्स छोटे छोटे हैं ये भी हो सकता है इसके कारण भी जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, इसलिए कुलकाज को हटाया जाने लगा, उसके ज़मीन को छीना जाने लगा और जो छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स थे उनको भी कलेक्ट करके बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स का, एक कोऑपरेटिव्स का निर्माण किया गया जिसको कि कॉलखोज बोलते थे। और इसके कारण जो बड़े बड़े किसान थे या जो दूसरे किसान थे वो भी स्टालिन से काफ़ी गुस्से में आ गए और जो कॉलखोज था उसका निर्माण किया गया और सब लोगों को फोर्स किया गया, जो भी वर्कर्स थे, जो लोग थे, उनको फोर्स किया गया कि जो कॉलखोज है, जो कलेक्टिव फार्म्स है, आप लोग वहीं पे काम कीजिए, कहीं दूसरे जगह पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और जो भी इम्प्लीमेंट्स था, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स था कुलकाज के पास में या फिर जो छोटे पीजेंट उसको लेकर और कॉलखोज के ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब जो भी अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स था, जो खेती है, जो बाड़ी है, जो बड़ा बड़ा जो ज़मीन था, वो सब उनसे छीन लिया गया, मतलब एक तरह से कलेक्ट कर लिया गया और कलेक्ट करके बड़े बड़े कॉलखोज का निर्माण किया गया, कलेक्टिव फार्म्स का निर्माण किया गया और फोर्स किया गया कि सभी लोग अब वहीं पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो वही था लैंड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ कि जो किसान लोग थे ये काफ़ी गुस्से में आ गए और ज़बरदस्ती किया गया था, ज़बरदस्ती ज़मीन से छीन ली गई थी, इसलिए काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन उस विरोध को नहीं सुना जाता था
और पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता था। बहुत लोगों को मर्डर भी कर दिया गया, बहुत लोगों का पता भी नहीं चल पाया कि कौन किसान कहाँ चला गया, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। बहुत लोगों को जो साइबेरिया था वहाँ पे भेज दिया जाता था। तो काफ़ी लोगों को वहाँ टॉर्चर किया गया। जो स्टालिन के समय जो लैंड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चला उस समय काफ़ी लोगों को टॉर्चर किया गया। लोग वहाँ पे बहुत ही परेशान थे, तो यही था। और ये जो स्टेप था वो स्टालिन को काफ़ी अनपॉपुलर बना दिया। जो लैंड कलेक्टिवाइजेशन जो इनका प्रोग्राम था इसके कारण काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे स्टालिन। तो ये एक दुखद आप लोग घटना मान सकते हैं रशिया के ये में। बाद में 1933 में जैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन ख़त्म हुआ, 1929 से 31 तक इकोनॉमिक डिप्रेशन था। जैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन ख़त्म हुआ उसके बाद अपने आप जो है स्थिति थी वो सुधरनी शुरू हो गई। तो एक तरह से जो लैंड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है स्टालिन का, ये काफ़ी ही अनपॉपुलर स्टैंड और काफ़ी अनपॉपुलर वर्क था स्टालिन। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन आंसर में ये हेल्प करेगा। By 1927 towns in Russia faced acute shortage of fuels। काफ़ी जैसे 1927-28 में एक्यूट जो शॉर्टेज हो गया वो फूड ग्रेन्स का हो गया। Stalin thought that rich peasants, kulkas, in the countryside where holding stocks in the hope of higher prices। So party members जो पार्टी मेंबर्स थे उनको लगा स्टालिन को कि जो बड़े बड़े जो कुलक्स हैं वो लोग ज़्यादा प्राइसेस के चक्कर में जो फूड ग्रेन्स का है उसके स्टॉक को दबा कर रखे हुए हैं। तो इसलिए जो पार्टी मेंबर्स थे वो रेड करना शुरू कर दिए कुलक्स का। आफ्टर दैट ऑल्सो शॉर्टेज कंटिन्यूड। उसके बाद भी जो शॉर्टेज है वो खत्म नहीं हुआ। सो डिसीजन was taken to collectivize land holdings।
डिसीज़न लिया गया कि जो लैंड होल्डिंग्स है उसको कलेक्ट किया जाए, उसको कलेक्टिवाइज किया जाए। ये जो हम लिखवा रहे हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो खुद इसमें काफ़ी दिक्कत होगी क्वेश्चन आंसर ये करने में, फॉर्म करने में। आपको बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें कहीं पे दिक्कत होगी आपको। It was necessary to eliminate tullets and take away lands from peasants। ये जरूरी था कि जो कुलक से हैं उनसे और जो पीजेंट से हैं उनसे जमीन को ले लिया जाए। State controlled large farms called kolkhos were established। जो कुलक्ष हैं उनके ज़मीन को ले लिया गया, पीजेंट्स के ज़मीन को ले लिया गया और बड़े बड़े स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म जिसको कि कॉलखोज बोला जाता था उसको एस्टेब्लिश किया गया। From 1929 all peasants were forced to work on kolkhos। Peasants working on कोऑपरेटिव जो था कॉलखोज का निर्माण किया गया और पीजेंट्स वहीं पे काम करते थे और जो प्रॉफिट था उसको वो उन लोगों के बीच में शेयर कर लिया जाता था। तो एक तरह से ये जो स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो उनको काफ़ी अनपॉपुलर बना दिया, क्योंकि इसके बाद ये जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम था वो जस का तस रहा, क्योंकि ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जो उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसके कारण ये जो प्रॉब्लम है वो चल रहा था। तो जैसा प्रॉब्लम था वैसा ही रहा और 1931 के बाद 33-34 आते आते फिर से जो है जो प्रॉब्लम है खुद ब खुद ये सॉल्व होना शुरू कर दिया। ये जो स्टालिन जो ये स्टालिन का और भी इसमें कुछ भी लिखना बाकी है उसको हम लिख देंगे, उसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा टफ है, लिखने में काफ़ी टफ लगेगा। इसके बाद भी और कुछ पॉइंट्स हैं, इसका जो आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एक बार फिर से इसको समझाकर और फिर से अच्छी तरह से इसको लिखवा देंगे। उसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है
जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 4, रशियन रिवॉल्यूशन का पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर क्या ये हुआ, असर हुआ, उसको भी कल हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक साथ सभी क्वेश्चंस को दे देंगे।